कौन से एक्सरसाइज में, कौन से उसमें, लेवल 2 में? लेवल 2. Equation of locus of middle point of the portion of tangent to this ellipse included between the coordinate axes. Let us say this is my ellipse and equation of this ellipse is x square upon 16 plus y square by 9 is equal to 1. This is question number 24, level 2. Equation to the locus of middle point of the portion of the tangent to this ellipse. Let us say this is my tangent to the ellipse. I want locus of its midpoint. किसका? Portion of the tangent which is included between the coordinate axes. Means if I take this as A, this as B, I want locus of the midpoint of AB. Is the question clear? Now what I do? This is the equation of the ellipse. Whenever you have to find out locus and you are talking about tangents, it's always advisable to use parametric form. Because in parametric form I have cos theta sin theta. Uski elimination is easy for me. I can eliminate that easily. So what are the parametric coordinates I take? Say this is the point where I have drawn the tangent. Can I take this Q point as 4 cos theta 3 sin theta? Any point on the ellipse. Parametric coordinates क्या थे? A cos theta, B sin theta. So 4 cos theta, 3 sin theta. Now write down equation of tangent to this ellipse at this point. That is the equation of AB. क्या equation हो जाएगी tangent की? बोलिए. 4 cos theta into x by 16, x x1. Now x1 is 4 cos theta. X x1 upon a square, y y1 upon b square minus 1 is equal to 0. So I have x by 4 cos theta, y by 3 sin theta minus 1 is equal to 0. This is the equation of AB. Now can I have the coordinates of the point A and B? हाँ जी, बोलिए जरा A point के coordinate क्या होंगे? x by 4 cos theta plus y by 3 sin theta is equal to 1. ये मेरी इक्वेशन है. A पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करूं? y को 0. If y is 0, x will be 4 upon cos theta. So ये पॉइंट हो गया 4 upon cos theta 0 और b पॉइंट क्या हो जाएगा? 0 and 3 by sin theta. अब मुझे A और B के कोऑर्डिनेट मिल गए हैं. मुझे क्या चाहिए? लोकस ऑफ मिड पॉइंट. जिस पॉइंट का लोकस मैं मान लेती हूँ ये P पॉइंट जो है ये मिड पॉइंट है. जिस पॉइंट का मिड पॉइंट लोकस निकालना हो तो उसको क्या ले लेते हैं? H के. तो H क्या हो जाएगा? H will be 2 by cos theta and K will be 3 by 2 sin theta. x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. अब आंसर H और K के टर्म्स में चाहिए. तो यहाँ से cos theta sin theta की वैल्यू h k की टर्म्स में, फिर cos square theta plus sin square theta is equal to 1 will give you the answer. और बोलिए. (28th) क्वेश्चन नंबर 28 है. A point on the ellipse दिया है हमें x square upon 6 plus y square by 2 is equal to 1 at a distance 2 from the center of the ellipse has the eccentric angle. Any point which is at a distance 2 from the center of the ellipse. This is center of the ellipse 0 0. Any point on this ellipse can I take root 6 cos theta root 2 sin theta where theta is what? Eccentric angle for that point. अब मुझे क्या दिया? इन दोनों के बीच में डिस्टेंसेस 2. ठीक है, तो पॉइंट को
कोऑर्डिनेट फॉर्म में x1 y1 लेने की बजाय हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया उसको पैरामीट्रिक फॉर्म में। पैरामीट्रिक फॉर्म में लिया, इसमें और इसमें डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 6 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा अंडर रूट दिस इज 2। तो थीटा निकल जाएगा, यहां से थीटा निकल जाएगा। तो आपको क्या पूछा है, एक्सेंट्रिक एंगल ही तो पूछा, थीटा ही निकालना। ठीक है जी। सो इस तरह के क्वेश्चंस में x1 y1 की बजाय पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स एज्यूम करते हैं, तो काम हमारा बहुत आसानी से हो जाता है। चलिए जी, और बोलिए। और वैसे भी जब भी एक्सेंट्रिक एंगल की बात आ जाती है तब तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट में जाना ही पड़ेगा, अदरवाइज एक्सेंट्रिक एंगल हम इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। हाँ जी, और कुछ? चलिए जी, फिर एक क्वेश्चन लिखिए जरा। देखो जी, the common tangents to the circle, common tangent to the circle x square plus y square is equal to 2, common tangent to the circle x square plus y square is equal to 2 and parabola y square is equal to 8x, y square is equal to 8x, common tangents to the circle x square plus y square is equal to 2 and the parabola y square is equal to 8x. Touch the circle at the points P and Q, at the points P and Q, and parabola at R and S, at R and S. Then find area of the quadrilateral PQRS. Area of the quadrilateral PQRS. So the only thing you have to do is PQRS के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, निकल जाएंगे, एरिया तो निकाल ही लोगे। टेंजेंट्स कॉमन हैं दोनों को, सर्कल को भी और पैराबोला को भी, तो कहाँ से शुरुआत करोगे क्वेश्चन की?
हाँ जी, कर क्या रहे हो तो बता दो। कहाँ से शुरुआत करूं? क्या आप इस पैराबोला को जो टेंजेंट है उसकी इक्वेशन एज्यूम चल सकते हो? किस फॉर्म में लूं? y इज इक्वल टू एम एक्स, सी क्या होता था? a बाय एम। a कितना है पैराबोला के लिए? 2, so 2 by m, this is tangent to this parabola। अगर इस इक्वेशन में सर्कल को भी टेंजेंट होना है तो क्या कंडीशन? अगर एक लाइन सर्कल को टेंजेंट है तो क्या कंडीशन जस्टिफाई होती है? सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर होना चाहिए। यहां पर सेंटर 0 0, रेडियस √2। तो क्या इस लाइन का डिस्टेंस 0 0 से निकाल करके उसको √2 से कंपेयर करके m निकाल सकते हो? समझ में आ गई मेरी बात क्या कह रही हूं मैं? निकालो जरा वो m क्या है। हाँ जी, क्या वैल्यू आई m की? ये आपके पास लाइन हो गई m²x माइनस my प्लस 2 इक्वल टू 0। सेंटर मतलब 0 0 से इस पर डिस्टेंस देखोगे तो 2 अपॉन m⁴ प्लस m² मॉड, दिस शुड बी इक्वल टू √2, क्योंकि सर्कल का रेडियस है √2। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूं तो क्या आएगा? 4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स m⁴ प्लस m², और आई राइट m⁴ प्लस m² माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्या इसको सॉल्व करके हम निकाल सकते हो? निकालो फिर, जल्दी बोलो m की वैल्यू क्या आ रही है? m² प्लस 2 इज इक्वल टू 0 से तो इमेजिनरी वैल्यू मिल गई, m² माइनस 1 इज इक्वल टू 0 से मुझे m की वैल्यू मिल गई प्लस माइनस 1। अगर m प्लस माइनस 1 है, यहाँ पर इक्वेशन में m को प्लस माइनस 1 डाल करके आपके पास टेंजेंट्स की इक्वेशंस आ जाएंगी। उन टेंजेंट्स की जो इक्वेशंस आई हैं, फिर क्या करना है अब तुम्हें? PQRS कैसे निकालोगे? टेंजेंट्स की इक्वेशंस आ गई, हाउ टू गेट PQRS? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है जी, वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ जाएंगे, फिर एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर आता है निकालना। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के फॉर्मूले दिए हुए हैं सीधे सीधे, a अपॉन m² 2a/m, वहां से आप पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकाल सकते हो, एक बार m को +1 और एक बार -1 लेकर के, इलिप्स में भी और उसमें भी।
चारों पॉइंट्स आ जाएंगे, फिर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकाल लेना। ठीक है जी, आंसर है इसका 15, करके देख लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 15। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS इज 15 स्क्वायर यूनिट्स। ये क्वेश्चन है आपका IIT एडवांस 2014। एक और लिख लो। लिखिए जी, इफ नॉर्मल फ्रॉम द पॉइंट H1, P point H1, if normal from the point H1 on the ellipse x square upon 6 plus y square by 3 is equal to 1. If normal from the point PH1 on the ellipse x square upon 6 plus y square upon 3 is equal to 1 is perpendicular to the line, is perpendicular to the line x plus y is equal to 8, x plus y is equal to 8, then what is the value of h? What is the value of h? सर जी करो फटाफट, एक दो क्वेश्चन और कराने हैं, फिर हम हाइपरबोला पर चलें। टू, h की वैल्यू 2। ये भी आपका जेई एडवांस 2014 का क्वेश्चन है। दिस इज वन पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स आता है आपके पास, अगर आपको कुछ आइडिया है तो। मालूम है मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आते हैं, कॉलम 1 कॉलम 2 दिया है, कॉलम 1 में से आपको लिस्ट करके आई मीन मैच करना है कॉलम 2 के आइटम, उसका एक पार्ट है ये मैथमेटिक्स का। हाँ जी, सबका हो गया या करूं मैं? सबका? चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। आपके पास आईआईटी मेंस में असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस आते हैं, आइडिया है किसी को क्या है ये? असर्शन रीजन क्वेश्चंस पता है कुछ कैसे होते हैं? हाँ, तो वैसा ही एक क्वेश्चन हमारे पास है, लिख लो जी। स्टेटमेंट 1 दी है। स्टेटमेंट 1 is an equation of, लिखो जी, स्टेटमेंट 1 है an equation of, मैं बताती हूँ, अभी नहीं पता तो क्या है ये, वो बताती हूँ, पहले स्टेटमेंट लिख लो। an equation of common tangent, an equation of common tangent to the parabola y square is equal to 16 root 3x,
16 root 3x and ellipse 2x square plus y square is equal to 4. 2x square plus y square is equal to 4 is y is equal to 2x plus 2 root 3. ये स्टेटमेंट 1 दी है. एन इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू दिस पैराबोला एंड दिस इलिप्स इज दिस. दिस इज स्टेटमेंट 1. स्टेटमेंट 2 है if the line y is equal to mx plus 4 root 3 by m is a common tangent to the parabola and ellipse mentioned in statement 1, then m satisfies this relation. m power 4 plus 2m square is equal to 24. पहली स्टेटमेंट में दिया है कि ये y is equal to 2x plus 2 root 3 इसको और इसको कॉमन टेंजेंट है. दूसरी स्टेटमेंट में दिया है कि अगर y is equal to mx plus 4 root 3 by m इन दोनों को कॉमन टेंजेंट है तो m इस रिलेशन को जस्टिफाई करता है. सबसे पहले तो ये किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं वो बात हम एक बार समझ लें. क्या दिया है मुझे? 2 स्टेटमेंट्स दी हैं, उसके बाद ऑप्शंस दी होती हैं. स्टेटमेंट 1 is true, 2 is true. 1 is true, 2 is true and 2 is the correct explanation of 1. ऑप्शंस क्या क्या हो सकती हैं? दोनों ट्रू हैं, एक ट्रू है दूसरी फॉल्स है, ये फॉल्स है ये ट्रू है, या दोनों ट्रू हैं और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. वो ऑप्शंस दी होंगी, तुम्हें लिखा हुआ होगा क्वेश्चन में. ए ऑप्शन है से स्टेटमेंट 1 is true, 2 is true and 2 is the correct explanation of 1. से बी ऑप्शन है दोनों ट्रू है लेकिन सेकंड फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन नहीं है. पहली ट्रू है दूसरी फॉल्स है, पहली फॉल्स है दूसरी ट्रू है. ठीक है जी. तो सिर्फ क्वेश्चन को पूछने का तरीका डिफरेंट हो गया और कुछ नहीं किया हमने. क्या करना है? पहले इस स्टेटमेंट को चेक करो क्या ये सही है या गलत है. सेकंड स्टेटमेंट को चेक करो सही है या नहीं है. अगर दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं अगर एक फॉल्स हो गई एक ट्रू हो गई तो उसके हिसाब से आंसर मार्क कर दोगे. ठीक है. अगर दोनों ट्रू हैं फिर देखना पड़ेगा क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है. समझ में आई है मेरी बात क्या कह रही हूं मैं? चलिए फिर फटाफट चेक कर लीजिए क्या दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या इनमें से कोई एक फॉल्स है एक ट्रू है. पहले तो यही हमें कंफर्मेशन करनी है. 2 मिनट में वापस कनेक्ट कर रही हूँ. आप लोग जरा क्वेश्चन ट्राई करो.